vacations. So here is the blueprint of your complete syllabus for 12th class. So your question paper will be mainly divided into 3 sections: reading, writing and textbook. Reading we will be doing later on. It carries 15 marks and there will be 2 comprehensions. Not exactly comprehension, second one will be notes making. That we will do later on. Second is writing section, that we have already covered before summer vacations, but for revision we will do it again in the coming time. Now we will be focusing on textbook section. Your textbook section has 2 books, Rainbow main book and Panorama supplementary reader. As Rainbow is your main book, we will be starting with Rainbow from today. I request you all to buy textbooks from Purushottam Book Depot or from anywhere you are thinking to purchase, but you should have a textbook whenever you are coming for the class. So we will start with Rainbow today. It has 11 chapters. I am starting with the second chapter of this textbook. The chapter's name is A Room 10 into 8. I hope you are having a book, this Rainbow book with you, and if you do not have this book, kindly bring the book in the class. So I will start by reading the chapter, and after reading a paragraph or 2 paragraphs, I will be explaining the context of the chapter. So the chapter lesson 2. I am starting with lesson 2 because lesson 1 is much more geographical and we will do that chapter later on. A room, and this is 10 into 8, 10 by 8. This is the measurement of the room. So the chapter is basically on karma. In Hindi we call that karm, and the chapter is based on a very famous quote, as you sow, so shall you reap. Which means जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे. This chapter has one main character. There are many more characters, but Mrs. Malik, she is the main character of protagonist of this story. Starting with the text of the chapter, this room might be 10 into 8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. It was the third time that she had made this suggestion. It seemed that it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. So there is a setup, there is a place in which 3 people have been mentioned. So Mrs. Malik is making a suggestion, and whatever suggestions she is making, she has pointed out that suggestion 3 times. Means she is saying the same thing again and again. But whatsoever she was saying, neither her husband nor the architect that was designing their house was listening to Mrs. Malik's suggestions. Second paragraph, the Malik is the surname of the family. The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. वो लोग अपना खुद का घर खरीद रहे थे दिल्ली में. उन्होंने they had purchased a plot in the most fashionable colony of the town sometimes ago. कुछ समय पहले plot खरीदा था. Now that they were posted back in Delhi, they thought they might as well have the house built. अब क्योंकि उन्होंने अब उनकी पोस्टिंग मीन्स मिसेस मलिक के हस्बैंड की पोस्टिंग दिल्ली में हो चुकी थी, तब वो लोग सोच रहे थे कि वहीं पे उस प्लॉट पे अपना घर बना लें. In her heart of hearts is an idiom which means in Hindi मन ही मन में. Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station.
तो मिसेस मलिक ने सोच लिया था कि अगर उनके हस्बैंड का ट्रांसफर कहीं हो जाता है तो उसके बावजूद भी वो दिल्ली में ही रहेगी, बिकॉज शी वॉज टायर्ड ऑफ देयर पोस्टिंग्स। एवरी अदर ईयर दे मूव टू अ न्यू प्लेस। तो हर साल उसके हस्बैंड की पोस्टिंग होती रहती थी, वो इस चीज से थक चुकी थी। नाउ द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, इट वाज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, बिकॉज अब मिसेस मलिक के जो चिल्ड्रन थे उनकी भी एज बढ़ रही थी, और एक जब बच्चे बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो शी वाज थिंकिंग अब ठीक नहीं है उनका बार बार स्कूल चेंज करवाना, क्योंकि इससे उसके बच्चों की स्टडीज को इफेक्ट पड़ रहा था। मिसेस मलिक सेड इफ यू मस्ट, मिसेस मलिक फिर अपने हस्बैंड से बोलती है कि अगर उसके हस्बैंड की पोस्टिंग होती है तो मिस्टर मलिक वुड गो अलोन, और मिसेस मलिक परमानेंटली दिल्ली में सेटल हो जाएंगी अपने बच्चों के साथ, एंड शी वुड हैव अ मदर इन लॉ, और मिसेस मलिक अपनी मदर इन लॉ के साथ भी वहीं रहेंगी, और मिसेस मलिक को उनकी कंपनी भी मिलती रहेगी। तो मिस्टर मलिक ने बोला कि मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दिस रूम माइट बी 10 into it, मिसेस मलिक रिपीटेड। सो दिस इज द सजेशन दैट मिसेस मलिक वाज गिविंग अगेन एंड अगेन। क्या सजेशन दे रही थी मिसेस मलिक? दैट द साइज ऑफ द रूम शुड बी 10 by 8। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, और जब वो उन्होंने ये लाइन फिर से बोली, और उस समय मिसेस मलिक के हस्बैंड मीन्स मिस्टर मलिक एक फोन कॉल अटेंड कर रहे थे एडजेसेंट रूम में। मिसेस मलिक ने जब ये लाइन बोली तो जो आर्किटेक्ट था, ही एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक दैट दिस इज अ स्टोर, कि ये रूम नहीं है, ये एक स्टोर है। यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम। मिसेस मलिक ने बोला उस समय कि वो रूम साइज क्यों बोल रही थी 10 by 8, क्योंकि वो सोच रही थी कि ये रूम अभी उनकी मदर इन लॉ उस रूम में रह लेंगी, और बाद में क्योंकि उसकी मदर इन लॉ ऑलरेडी एज्ड है, तो आफ्टर हर डेथ दे कैन यूज दिस रूम एज अ स्टोर रूम। आर्किटेक्ट को ये चीज समझ नहीं आ रही थी। ही वॉज गेटिंग पजल्ड बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन। आई मीन, शी सेड आई मीन, एंड देन शी स्टॉप्ड इन बिटवीन। माय मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट। उसने बोली ये चीज फिर से एक्सप्लेन करी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ अभी प्रेजेंट में ये रूम यूज कर सकती है, बट जैसे कि तुम्हें पता है शी इज ओल्ड एंड इन्फर्म। इन्फर्म मीन्स फिजिकली वीक। शी इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर, देन शी स्टॉप्ड अगेन, एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम। मिसेस मलिक एक्सप्लेन हॉल्टिंगली। हॉल्टिंगली मीन्स अपनी बात बोलते हुए बीच बीच में रुक जाना। मिस्टर मलिक जॉइंड देम। इतने में मिस्टर मलिक वहां पर आ गए। इट सीम्स व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू दिस सजेशन। तो ऐसा लग रहा था कि जब वो फोन पे बात कर रहे थे मिस्टर मलिक, तो शायद उन्होंने ये बात भी सोची थी कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो भी इसी ओपिनियन के थे दैट द स्टोर शुड बी अ लिटिल बिगर, कि जो स्टोर है उसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ कमोडियस स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली। ट्रंक्स इज संदूक, बक्सा। देन इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइट। जब थोड़ा रूम बड़ा होगा तो उसको क्लीन रखने में भी आसानी होगी। इसलिए डिसाइड हुआ कि जो रूम है किचन के एडजेसेंट में, उसका साइज होगा 10 by 8। द कोर्टयार्ड वुड बी अ लिटिल नैरोर बट दैट डिडंट मैटर मच, क्योंकि अब रूम का साइज इंक्रीज कर दिया गया था, तो इसलिए जो कोर्टयार्ड था उसका साइज हल्का सा रिड्यूस कर दिया गया था। All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation. बाकी सब डिजाइनिंग जो भी थी जैसे डिसाइडेड थी वैसी हुआ था, और उसके अप्रूवल के लिए कॉर्पोरेशन में भेज दिया गया। Mrs. Malik took an untiring interest in the construction of the house. She would have been standing at the side with her umbrella throughout the day. She supervised every detail. At times, she would give a hand to the masons and others. She was the first to arrive at the construction site and left after everyone had gone away. She ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about. So Mrs. Malik, जितने टाइम उनका घर बना पूरे टाइम उन्होंने उसको सुपरवाइज करा। वो सबसे पहले इन्हें वर्कर्स और लेबरर से पहले वहां जाती थी, और उनके जाने के बाद उस साइड पे से जाती थी पूरे दिन, वेदर इट वॉज रेनी और वेदर इट वॉज हॉट और सनी। वो पूरे टाइम वहाँ पे सुपरवाइज करती रहती थी कि मेसन ढंग से काम कर रहे हैं, कोई खाली तो नहीं बैठा है, मटेरियल वेस्ट तो नहीं हो रहा है, all this. Before long the house was completed. Mrs. Malik insisted that she would have new furniture made for the house. और घर कंप्लीट होने से पहले ही, काफी पहले मिसेस मलिक ने इसे डिसाइड कर ली थी और बोलती थी अपनी फैमिली वालों को that
फॉर दिस हाउस वो कोई भी ओल्ड फर्नीचर नहीं यूज करेगी, हर एक चीज न्यू होनी चाहिए उसके न्यू हाउस में। They were still in the mid of plan to shift when they learned that the house had been acquired by the government. अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था हाउस, प्लानिंग चल ही रही थी। उन्हें पता लगा कि वो जो एरिया है जहाँ पे वो घर बना हुआ है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। Mrs. Malik was furious. She got angry, but the next moment when Mr. Malik mentioned the rent assessed, she quieted down. बट उसी के बाद मिस्टर मलिक ने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो हमारा वेस्ट हो गया है सब, वो जो हमने घर बनाया वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स के अंडर ही आएगा और हमें उसका रेंट पर मंथ मिलता रहेगा। While supervising the construction of the house, अभी फ्लैशबैक में गया है पार्ट कि जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था घर का, सो मिसेस मलिक जैसे कि बताया कि मॉर्निंग में सबसे पहले चली जाती थी, इवनिंग में सबसे बाद में आती थी। इन द मीन टाइम उनकी वहाँ पे जो नेबर्स है उन सबसे जानकारी हो गई थी, सब उसके फ्रेंड्स बन गए थे उस कॉलोनी में, और उसने बहुत सारे अपने प्लान्स बना लिए थे उस घर को लेके। बट अब उनके सारे प्लान्स टूटने वाले थे, सारे सपने टूटने वाले थे और उनको भी सारी चीजें भूल के आगे बढ़ना था। मिस्टर मलिक वॉज ट्रांसफर्ड अगेन, और मिसेस मलिक खुश थी इस बार उनके ट्रांसफर से, क्योंकि उनको ये था कि अगर वो दिल्ली में ही रहती तो उनको बार बार वो घर दिखता और उनको याद आती और उनको बुरा लगता। बट क्योंकि अब उनका ट्रांसफर हो चुका था उनके हस्बैंड का, तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी और वो शायद अब उस घर के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगी। और दूसरी तरफ क्योंकि वो गवर्नमेंट ने एक्वायर करा था और उसका रेंट आ रहा था तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इन द मीन टाइम मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे। मिसेस मलिक की जो मदर इन लॉ थी उनकी डेथ हो गई। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, डॉटर की शादी हो गई। इन अ वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट। Private tenants are such a headache, there is no end to their complaints and demands. And then they are more often that not irregular in the payment of rent. और वे सब चीजें सोच के खुद को सेटिस्फेक्शन दे रही थी और कंसोल कर रही थी कि वैसे भी जो प्राइवेट टेनेंट्स आते हैं, टेनेंट मीन्स किराएदार, वो लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, टाइम पे कभी भी रेंट नहीं देते हैं। बट क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्वायर करा था तो उन्हें ना रेंट लेने जाना पड़ता था, बाय रेगुलरली एवरी मंथ उनका रेंट उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता था गवर्नमेंट के थ्रू। अब सिर्फ उनके सन बचा था टू गेट मैरिड। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड। और मिस्टर मलिक सोच रहे थे कि उनके रिटायरमेंट से पहले वो अपने सन की भी मैरिज फिक्स कर दें। देयर सन हैड बीन मैरिड, अब उनके बेटे की भी मैरिज हो चुकी थी। मिस्टर मलिक सर्विस से रिटायर हो चुके थे, बट अभी भी उनका हाउस गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज नहीं किया गया था। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ रेंटेड हाउस, और वो अभी भी किराए के घर में ही रह रहे थे। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड केम, और वो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते ही रहे एंड उनकी डेथ भी हो गई, बट उनको अभी भी उनका घर नहीं मिला था मिस्टर मलिक को। He died even without living in his house even for a single day. Now within 3 months the house was de-requisitioned. अब अगले 3 महीने के अंदर अंदर उनको उनके हाउस की कस्टडी वापस मिलने वाली थी। So from here the second part starts and I will be dealing with the second part in the next class. I request to all of you please read these 2 pages, page number 7 and 8 kindly, and if you have any doubt please ask me. Thank you.